Hello students, welcome you all. We are with our 12th English 1.8 lesson Voyaging Towards Excellence, and we have completed 4 parts up to now. Now this is the 5th part on the lesson. Let us continue. So what we have seen, that writer had got admission in IIT Mumbai. There he faced the challenge of not being able to speak properly English, and so he worked hard on it by reading the newspapers, again English novels, as well as studied the etymology and phonetics and studied the roots of the words and how to pronunciate them also. Okay, and then he was in 3rd year. Okay, and there he came to know the real challenges, because up to that time he thought that he was a somewhat intelligent, but when he met with new friends there or became familiar with a new group, there he came to know what real brilliance means. Let us begin. However, after I met my friends in our group, I came to know what real brilliance meant, and I realized where I stood. Okay, so he came to know that he was not enough brilliant. The real geniuses were there before him. Okay, the students who were learning in his 3rd year faculty, they were more intelligent, or where he was actually, where does his knowledge stand, these things that he came to know there. इसके बाद में क्या होता है, आगे देखते हैं. I was actually also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life. Okay, now he is saying that he is thankful that at the very early stage of his life he became familiar, or again he came in contact with great people, the people who are renowned on the worldwide also. Okay, on global scale, यानी worldwide. Okay, later in my life, when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni's software division, occupying the same chair. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि नारायण मूर्ति जो है, नारायण मूर्ति वो इन्फोसिस से रिलेटेड है. इन्फोसिस उनकी खुद की कंपनी है. तो इन्फोसिस उन्होंने स्टार्ट करने के पहले वो पटनी में काम करते थे. ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है. तो उन्होंने पटनी छोड़ी, तो उसके बाद में उसी कंपनी को जो हमारे राइटर है अच्युत गोडबोले, उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद में ही बिकेम द हेड ऑफ द ऑफिस. माय हेड ऑफिस वाज इन कैम्ब्रिज, मैसेच्यूसेट्स, यूएसए, वेरी नियर बोस्टन. सो इनका जो ऑफिस जो था, हेड ऑफिस पटनी का, वो था यूएसए में, कैम्ब्रिज में, मैसेच्यूसेट्स स्टेट में, नियर बोस्टन. ठीक है. इट वॉज इन फैक्ट द एडजेसेंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका. तो कहते हैं कि जो पटनी का हेड ऑफिस जो था, दैट इज़ एडजेसेंट बिल्डिंग. ओके, एडजेसेंट यानी ये वर्ड इसके पहले भी गया है, क्लोज बाय और नियर बाय. बिल्डिंग टू MIT, MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज MIT in America. I had to visit the US every few months in those days. और उन्हें अपने काम के सिलसिले में बार बार अमेरिका जाना पड़ता था. I had to visit the US every few months in those days. I used to visit MIT during lunch time to meet my friends. तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो था, तो वहाँ पे सम ऑफ
his friends were there, and to meet them, he would go there. There, one could see a couple of Nobel laureates at the dining table. बहुत सारे वहाँ पे नोबेल लॉरेट्स यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऐसे कुछ वहाँ पे साइंटिस्ट लोग थे कि जो वहाँ पे MIT को रेगुलरली विजिट करते थे, तो वो वहाँ पे देखे जा सकते थे. एंड ही वॉज वेरी प्लीज टू सी देम. इफ यू वॉकड फॉर एन आवर फ्रॉम देयर, यू कुड रीच हार्वर्ड स्क्वेयर नियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. और वहाँ से 1 घंटे की पैदल डिस्टेंस पे एक और फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो जस्ट हार्वर्ड स्क्वेयर के बाजू में है. आई यूज टू विजिट बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़. बोथ यानी कौन, यहाँ पे MIT और साथ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है. बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड कुड टॉक टू अ नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स. एंड हाउ ही कुड रेजिस्ट हिमसेल्फ, वो खुद को कैसे रोक पाते. तो वहाँ पे बहुत सारे वो जो नोबेल लॉरेट्स जो वहाँ पे अक्सर आया करते थे, उनसे वो बातचीत करते थे, उनसे वो बात करते थे और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उनका डिस्कशन भी चलता था. ड्यूरिंग दीज ईयर्स आई ट्रैवल्ड अ लॉट टू US, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as, यहाँ पे वो बताते हैं, एल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, C.K. प्रहलाद, टॉम पीटर्स और great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP/IP, which is the basic protocol of internet. तो ये TCP और IP का लॉन्ग फॉर्म मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ था. तो TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मीनिंग होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो विंसेंट सर्फ जो है उनको ये एक तरह से ही इज़ एक्चुअली गिवन द क्रेडिट टू डिज़ाइन TCP एंड IP. ठीक है, द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट. तो यहाँ पे कई ऐसे मैनेजमेंट गुरुज भी थे जिनमें एल्विन टॉफलर थे, पीटर ड्रकर थे, C.K. प्रहलाद थे, टॉम पीटर्स थे. इनसे उनको बार बार उनसे डिस्कशन का इनको मौका मिलता और वो उनसे बातचीत करते. एंड बाद में वो कहते हैं, ऑल दिस डिस्कशंस विद दिस ग्रेट्स broadened my horizon and my aims and world view became global. तो इसका नतीजा ये हुआ कि actually he is benefited. How he is benefited? That with the discussion that he had with those great people, it helped him. How it helped him? That it had broadened his horizon. जैसे उनकी एक दूर की सोच जिसे कहते हैं, तो उनकी सोच और बड़ी बनती गई, यानी उसका जो हॉरिजॉन जो है वो बढ़ते गया. साथ ही में उनके एम्स जो है वो बिगर एम्स बनते गए और उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड व्यू बना. ऑल दिस बिकॉज ऑफ द डिस्कशंस दैट ही हैड विद दोज ग्रेट पीपल. ठीक है. देन इट टॉट मी ह्यूमैनिटी. तो उनसे डिस्कशन से उनको और कुछ चीज़ें उन्हें मिली. एंड दीज आर द ह्यूमिलिटी मीन्स हियर, इसको हम कहेंगे ह्यूमिलिटी का मीनिंग क्या है. तो ह्यूमिलिटी का मीनिंग है मॉडेस्टी. तो उन्हें क्या सीखने को मिला यहाँ पे? ह्यूमिलिटी का मीनिंग क्या है? दैट इज़ मॉडेस्टी, जिसे हम विनम्रता कहते हैं. ठीक है. एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ. यानी अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है. अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न स्टिल दैट ही केम टू नो देयर. ओके. द लेसन इन ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क as well as passion for excellence was going to play a very important and vital role in my life.
तो यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर वो फोकस करते हैं कि व्हेन ही हैड डिस्कशन विद दोज ग्रेट पीपल एट अ टाइम, अ लेसन दैट ही लर्नड देयर इट वाज ह्यूमिलिटी, यानी सबसे बड़ी आदमी की जो खासियत जो होती है दैट इज़ बीइंग ह्यूमन। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमिलिटी कहा है उन्होंने। तो ह्यूमिलिटी का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज़ मोडेस्टी, विनम्रता, एंड हार्ड वर्क, दैट इज़ डूइंग द हार्ड वर्क। ठीक है, और साथ ही में पैशन फॉर एक्सलेंस, बेहतर से बेहतर होते जाना, एंड ऑल दोज 3 थिंग्स। ओके, दिस इज़ द सेकंड वन एंड दिस इज़ द थर्ड वन. They are going to play a very important and vital role in my life. Coming back to my groups in IIT, my friends were not only intelligent than me, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. Well read यानी वो अच्छे पढ़ाकू थे। पढ़ाकू यानी कई तरह का उनको नॉलेज था। और यहाँ पे वो बताते हैं दे हैड इंटरेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, विज्ञान में उन्हें इंटरेस्ट था उनके कॉलीग्स को, साथ ही में टेक्नोलॉजी, उसके बाद में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सभी आपको समझ में आया अभी। साइंस में उनके कॉलीग्स को इंटरेस्ट था, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, सोशियोलॉजी में उनको अच्छा खासी उनको जानकारी थी, साइकोलॉजी की जानकारी थी, इकोनॉमिक्स के बारे में उन्हें पता था, उसके साथ में फिलॉसॉफ़ी, यहाँ पे और वो कहते हैं फिलॉसॉफ़ी। फिलॉसॉफ़ी का मीनिंग क्या है, जिसको हम तत्वज्ञान कहते हैं, फिलॉसॉफ़ी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानववंश शास्त्रज्ञ। ठीक है, तो मानववंश शास्त्र। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी और एक कहते हैं वो आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, तो पुरातत्व विभाग जो होता है उसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। साथ ही में पॉलिटिकल साइंस, ये सभी दे वेयर द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। ओके, सो ही स्टडीड विद देम, ही डिस्कस्ड विद देम दोज थिंग्स देयर। अगेन ही इज सेइंग दैट आवर ग्रुप was interested in all these branches apart from all the fine arts. तो फाइन आर्ट्स के बारे में भी कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स होती है उन्हें फाइन आर्ट कहा जाता है। तो वो फाइन आर्ट में भी उनको इंटरेस्ट था, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, लिटरेचर हो गया, पेंटिंग हो गई, इन सब के बारे में भी उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। So obviously when he was staying there, or again he was a group of them, a part of their group, okay, and so here he could have a discussion about those things there with them, okay, and he could learn about those fields when he was learning with them. In short, our group was interested in almost anything under the sun. Almost anything under the sun. Anything under the sun, इसका मीनिंग क्या है, वो है anything at all. तो everything, करीबन सभी चीज़ों का उनके फ्रेंड्स को अच्छा खासा नॉलेज था, and they used to discuss those things with one another, okay, and which concerned ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। और उनके टॉपिक जो थे खास करके कैसे बिलोंग करते थे, अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अवर्स। आई वॉज इमीडिएटली अट्रैक्टेड टू द ग्रुप एंड डेवलप्ड immense and deep interest in all these branches of knowledge. None of these subjects were part of our curriculum at IIT, but again, I never studied for scoring marks in any examination. Okay, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो उनके फ्रेंड्स डिस्कस करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट दे यूज टू डिस्कस, एंड रियली ही वॉज greatly impressed with the discussions, okay, and so he also would take part in their discussion, and his English has also improved.
उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई थी, जिसके वजह से उनको वो सब चीज़ें समझ में आती थी. सो ही वुड टेक पार्ट इन द डिस्कशन, और वो बहुत ही इस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हुए और उनके वजह से उनको कई चीज़ें सीखने को मिली. तो यहाँ पे वो कहते भी है कि बोले ऑल द सब्जेक्ट्स वेयर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम एंड he only studied them because he had one thought, and what it was that here was a sea of knowledge is here before him, in front of him there was a sea of knowledge, and how he could resist himself to plunge into or to dive into that sea of knowledge. And so here was a sea of knowledge in front of me, which I thought was necessary to pass the examination of life. यहाँ पे वो examination of life के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन, करिकुलम एग्जामिनेशन नहीं, बल्कि आपको ज़िंदगी में भी एक एग्ज़ाम देना होता है, और उस एग्ज़ाम में पास करने के लिए ज़रूरी है कि यू शुड बी ऑल राउंडर, यू शुड हैव एन ओवरऑल नॉलेज. ओके, एनीथिंग दैट कम्स अंडर द सन, सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दोज थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ वो कहते हैं विच वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट पासिंग IIT एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे अच्युत गोडबोले कहते हैं कि बोले IIT मुंबई में अच्छे रैंक हासिल करना ही उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि वहाँ पे लाइफ के बारे में अच्छी तरह से जानना, लाइफ के स्किल्स सीखना और एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन होना, ये भी उनके लिए ज़रूरी था. विच वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट पासिंग IIT एग्जामिनेशन. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम अ मास्टर और एन एक्सपर्ट इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स. और वो यहाँ पे फ्रैंकली एक्सेप्ट भी कर रहे कि बोले इन सब्जेक्ट्स में पास होना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, टू बी अ मास्टर और एन एक्सपर्ट इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स दैट इज़ आल्सो very difficult, but it was very important for me to understand at least the basic principles of most of these subjects. आगे कहते हैं वो any of us could easily top the GRE examination. GRE examination का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? That is graduate record examination. तो ये ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये अगर आपने क्रैक कर दिए तो यू कैन इजीली बी एडॉप्टेड बाय एनी मल्टीनेशनल कंपनी. वो कहते हैं यहाँ पे कि एनी ऑफ अस, यानी उनके फ्रेंड सर्कल में से उनका जो ग्रुप जो था थर्ड ईयर में, तो वो ग्रुप इतना एक्सेलेंट था कि एनी ऑफ अस कुड इजीली टॉप द GRE एग्जामिनेशन एंड माइग्रेट टू द US. और इजीली वो US कि कोई भी कंपनी उनको उठा लेती, उनको ज्वाइन करा लेती और उनको अच्छा सैलरी पैकेज भी दे देती. हाउएवर दैट थॉट नेवर टच्ड आवर माइंड्स. टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स एंड सर्विंग इंडिया एंड हर पीपल वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट टू अस. यहाँ पे वो कहते हैं कि हियर गेटिंग अ बेटर जॉब प्लेसमेंट वॉज नॉट द टारगेट. वाई? Because they were more curious about the world. They wanted to know, wanted to understand the world and how it works and serving India also. So he wanted to serve India and her people. Okay, the people of India, that was more important to them, and so they did not appear for that examination and they only stayed here in India. सो दैट इज़ एन एक्सेलेंट लेसन फॉर अस. तो यहाँ पे आज के वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे अच्युत गोडबोले राइटर जो है, तो उनका एक इंटरैक्शन हुआ ग्रेट नोबेल लॉरेट से व्हेन ही वाज देयर सर्विंग देयर फॉर पटनी सॉफ्टवेयर कंपनी, एंड he could talk with the great thinkers, the management gurus there, and again he could learn a lot with them. The basic thing that he learned there, it was the humility, that is the modesty. Though they were the great thinkers, but they did not have any
arrogant feeling or again any haughty feeling that would make them feel great. Okay, they were very modest people, and he learnt during his IIT session. Okay, in his third year he learnt about many topics there, and he was just trying to get or acquire more knowledge from the sea of knowledge. Okay, we will stop here and see the remaining portion in the next video. Goodbye, students.